Hello students, this is Supriya Mogle and this is the next part of research methodology series, that is data types, quantitative data versus qualitative data. So first we'll see the meaning. What is data? It is raw data which is collected directly from the respondents or some other methods. And it is very much important for research. Why it is needed? Because your conclusion, your results are depending on what data you have collected. The difference between data and information is, you know, data is raw data. You cannot have any conclusion on it. You have to convert it into meaningful information, then you can go for analyzing and interpretation of it, so that you can have the purposeful or meaningful information. Next is we'll see the main quantitative data versus qualitative data. So quantitative, that means quantities, okay, it represents quantity. It has numerical values, it measures of counts or values. For example, how many, how much, how often. These are the data that can be represented in numbers, that is called quantitative data. What is qualitative data? It represents quality. You can have categories, category value. They actually can be measured. Okay, data organized into categories. For example, gender category है. यहाँ पे gender के अंदर क्या आता है? Male, female and other. So these are the categories. color category में आता है, तो color में कौन कौन से options आएंगे? So again, red, blue, yellow, etc. So these data can be observed and recorded, and it is not going to have numerical values. So qualitative data is deals with subjective data, or you can say non-numerical data, and quantitative is numerical data. These are measured in numbers. So these are the types of data. Quantitative data types are discrete, continuous, interval and ratio, and qualitative, nominal and ordinal. So first we'll see discrete versus continuous data. Discrete, that is, if you can count it, then it is discrete. For example, 1, 2, 3, 4 and so on. Only finite number of values are possible here, and it cannot be measured but counted. There is no such thing as half. That means you cannot subdivide that data into meaningful information. यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये आप मेजर नहीं कर सकते लेकिन काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं. कंटिन्यूस डेटा मतलब इफ यू कैन मेजर इट देन इट इज कंटिन्यूस. मतलब हाइट, वेट, लेंथ, दैट मीन्स इसको एक यूनिट अगर हम ऐड करेंगे, उस नंबर को यूनिट ऐड करेंगे तो इसका एक मीनिंग बन जाएगा. ये मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. और अगर जैसे कि डिस्क्रिट में हम हाफ जैसा कुछ नहीं होता. मतलब मुझे पॉपुलेशन काउंट करने हैं तो मैं 1 2 3 4 ही करूँगी. वहाँ पे हाफ पॉपुलेशन ऐसा कुछ नहीं होता. हाफ पर्सन ऐसा नहीं होता, वो एक ही पर्सन होता है. लेकिन कंटिन्यूअस में हम सब डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर पार्ट में. हाइट को 5.6 my height, that is, you are going to meaningfully subdivide into smaller parts. That is continuous data. Next, interval data versus ratio data. So interval data means what? It represents ordered units having same difference. यहाँ पे जो ऑर्डर होता है उनमें डिफरेंस सेम होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है एक प्लेस का, और इसके लिए कोई भी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है. दैट मीन्स 0 से ये स्टार्ट नहीं हो सकता. 0 का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं. सो टेम्परेचर ऑफ गिवन प्लेस, the example -10, -5, 0, 5, 10. -5 has also one meaning. So data can be added or subtracted, but it cannot be multiplied or divided. Multiply divide किया तो उसका meaning change हो जाएगा. Add और subtract किया तो
मीनिंग चेंज नहीं होगा। बट रेशो में क्या होता है, रेशो में एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज नहीं है, और जीरो को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। सो दैट इज एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। इसका भी सेम डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज नहीं होती है और एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है। दैट इज रेशो डेटा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेगोरिकल डेटा। यहाँ पे टू टाइप्स है, नॉमिनल डेटा वर्सेस ऑर्डिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा मतलब यू इफ यू कैन ब्रांड इट, इफ यू कैन लेबल इट, देन इट इज नॉमिनल। मतलब आप यहाँ पे किसी किसी एक फैक्ट को लेबल कर सकते हैं, ब्रांड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर इज अ लेबल। जेंडर के अंदर आपको कैटेगरीज मिलेंगी, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल। यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता। अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज किया, मेल को नीचे रखा, फीमेल ऊपर रखा, तो उसका कुछ मीनिंग चेंज नहीं होने वाला, मीनिंग विल बी द सेम। सो इफ यू कैन change the order of values, meaning will be the same. For example, gender, gender is a brand or label of one fact, और इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और कलर, कलर के कलर इज ऑल्सो नॉमिनल डेटा। कलर के अंदर भी आपको, आपने कलर एक लेबल दिया है एक डेटा को, और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज नॉमिनल डेटा। ये न्यूमेरिकल में भी आप मेजर नहीं कर सकते, इट इज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटीज है उस एक ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, और व्हाट इज द कलर ऑफ बॉल, कलर, कलर इज नॉमिनल डेटा। और उसके जो आंसर्स होने वाले हैं, रेड, ब्लू, वाइट, वट एवर, दैट इज अ नॉमिनल डेटा। सो ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल मतलब इफ यू कैन ऑर्डर इट और रैंक इट, देन इट इज ऑर्डिनल। इट इज सेम एज नॉमिनल, बट हियर ऑर्डरिंग मैटर्स। मैंने जैसे कहा कि नॉमिनल में हम ऑर्डर अगर ऑप्शंस के चेंज करेंगे तो मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन ऑर्डिनल में अगर मैंने ऑर्डर्स को चेंज किया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द डेटा। यहाँ पे ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं यूथ, फॉर एग्जाम्पल। सो ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। सो इट इज़ 1 to 5 स्केल, जहाँ पे 1 2 3 4 5 इसका कुछ तो मीनिंग है यहाँ पे, ओके। सो लिमिटेशन इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज आर नॉट नोन। ऑलवेज और यूजुअली के बीच में क्या है उसके, या फिर यूजुअली समटाइम्स के बीच में मैं यूज करता हूँ सोशल मीडिया। सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। यहाँ पे हम डिफरेंस जो है वो हमें पता नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डिनल डेटा इज यूज्ड टू मेजर satisfaction, happiness, motivation. These are again qualitative data. So these are the two types of qualitative data. Okay. So we have studied qualitative data versus quantitative data. Easy hai. If you can have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you have any feedback, yes, there is a scope for improvement. I can improve myself, and you are welcome to give the suggestions. Thank you.